परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। पंद्रह मई 2008 से 22 जून 2008 तक यानी परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने अमेरिका में एक महीना से भी ज्यादा दिन बिताए। अपनी पहली अमेरिका यात्रा में परम पावन करमापा जहां भी गए उन्होंने अमेरिकी बौद्ध अनुयायियों को, शिक्षकों, छात्रों को और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले व्यवसायियों, राजनयिकों और तमाम लोगों को बौद्ध धर्म के ज्ञान से अनुग्रहित किया। Sometimes when I see beautiful clouds in the sky, or when the sky is filled with clouds, I imagine that all of my compassion is being transferred to the clouds, and that everywhere in the world where these clouds can be seen, my compassion is present for sentient beings, benefiting them, entering their hearts. लेकिन अमेरिका यात्रा के दौरान परम पावन 17वें गेलवांग करमापा का एक ऐसा रूप भी देखने को मिला जो आपने शायद अभी तक नहीं देखा होगा। ये तस्वीर है लॉस एंजलिस के डिज्नीलैंड की। परम पावन करमापा का ऐसा रूप कम ही देखने को मिलता है। लॉस एंजलिस में परम पावन 17वें करमापा ने 16वें करमापा की तरह यूनिवर्सल स्टूडियो का दौरा भी किया। Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that we are currently seating for the first performance. लॉस एंजलिस के बाद परम पावन 17वें करमापा पहुंचे सियाटल। यहाँ उन्होंने न सिर्फ पहली बार कॉफी पीने का मजा लिया बल्कि बोट के जरिए सियाटल के बेहतरीन नजारे भी देखे। परम पावन करमापा को सियाटल के प्लेन म्यूजियम का दौरा भी कराया गया जो काफी दिलचस्प था। सियाटल परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के अमेरिका यात्रा का आखिरी पड़ाव था, लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त अमेरिका में रह रहे तिब्बतियों और नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच गुजारा। सियाटल में एक खूबसूरत मुलाकात खत्म हुई तो परम पावन 17वें करमापा रवाना हो गए न्यूयॉर्क के लिए। जहां से उन्होंने इंडिया के लिए वापसी की उड़ान भरी और इस तरह सफल तरीके से पूरी हुई
परम पावन 17वें गिलवांग करमापा की पहली अमेरिका यात्रा। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Tashidale, Namaskar. 30th June 2010, 19th day of the 5th lunar month, Wednesday, with the earth and water combination considered auspicious, and this combination of element has produced productive energy to produce great happiness in one's life, and this day is particularly good for the person born in the year of mouse, pig, ox, dragon, dog, while inauspicious for the person born in the year of snake and horse. This day is also a Naga day, so it is good for the Naga Puja. This day also has the empty hand, which is especially inauspicious for the accumulation of wealth and ceremonies related to that in particular. And there should not be any feast aimed for the deceased. 1st July, 20th day of the 5th lunar month, Thursday, which is a favorable day, person born in the rabbit, bird, monkey, and bad day for born in the year of ox, sheep, dog, dragon, and that particular day carries an auspicious combination of elements, which is the element of water and wind, and the day has incompatible energy to separate loved ones. Therefore, it is suggested not take any kind of important decision making on this particular day, and this all kind of activities, especially for taking or going for important meetings. 2nd July 2010, 21st day of the 5th lunar month, Friday, which is a favorable day for the person born in the year of sheep, bird, monkey, horse, and snake, while unfavorable for the person born in the year of tiger and rabbit. And this day has an elemental combination of earth, which is considered auspicious, and this day has wish fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. But during this particular day, so inviting of guests home is unadvisable. See you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। 3 बुद्ध धर्म की उत्पत्ति को सामान्यता रूप से देखें
सिद्धार्थ गौतम एक विशाल राज्य की साम्राज्य की राजकुमार थे, युवराज थे और हर किस्म की संपन्नता में वह जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु एक दिन वह नगर विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, तो एक वृद्धावस्था को प्राप्त मनुष्य को देखा, एक बूढ़ा आदमी को देखा। शरीर अत्यंत क्षीण हो चुके थे, ठीक से चल नहीं पाते थे, लाठी टिकते हुए धीरे धीरे वो जा रहा था। उनका पांव कंप रहे थे, कमर झुक गए थे, दृष्टि साफ नहीं था, आंखें ठीक दिखाई नहीं देते थे, तो बड़े झुक करके देखने की, मार्ग देखने की चेष्टा कर रहे थे। बहुत दयनीय अवस्था में थे और बड़ा दुखी थे। तो सारथी से पूछा, ये क्या है भाई, ये कोई हम सब जैसा नहीं है, कोई भिन्न जीव हैं। ने कहा कि शरत ने कहा कि राजकुमार, है तो ये हम सब जैसे एक मनुष्य हैं, लेकिन इनका आयु बहुत हो गए हैं, इनका शरीर वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं, जरा से ग्रस्त हैं, इसलिए इनका शरीर क्षीण हो गया है। अब ये फिर पुनः इस जन्म में यौवन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए ये दुखी भी हैं और शरीर से असक्षम भी हैं। तो सिद्धार्थ का एक स्वाभाविक प्रश्न ये रहा सारथी को कि क्या यह अवस्था कोई व्यक्ति विशेष को आते हैं अथवा सभी को आते हैं। स्वाभाविक था सारथी का उत्तर, राजकुमार जी तो सबको आता है, जिसने शरीर धारण किया है वह कुछ समय तक यौवन अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं, फिर यौवन को प्राप्त होता है, फिर धीरे धीरे आधी उम्र को होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो कोई भी अपवाद नहीं है, अपरिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनशील है, एक दिन ये विनाश होगा, ये इनको समझ में आया। थोड़ा आगे चलने पर एक कम उम्र के व्यक्ति परंतु बहुत दुबला पतला शरीर वाला और खांसते हुए और दर्द से कराते हुए एक मनुष्य को देखा। तो पूछा कि इसको क्या हुआ, ये तो वृद्धावस्था को प्राप्त तो लगते नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दुखी क्यों है, इतना दर्दनाक के परिस्थिति क्यों बने हुए हैं। तो सरस ने कहा कि राजकुमार, इनको रोग हो गया है, व्याधि हो गए हैं, ये बीमार हैं, अनेक प्रकार के रोग से ये ग्रस्त हैं, रोगी हैं, इनको दर्द हो रहा है, असह्य दर्द हो रहा है और इनका शरीर क्षय हो गया है, तो इससे ये मर भी सकते हैं या अच्छा चिकित्सा वाला मिल जाए, चिकित्सा करें तो ये पुनः स्वस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय ये रोग से ग्रस्त हैं। फिर दूसरा प्रश्न यही पूछा, क्या रोग किस व्यक्ति विशेष को आते हैं या ये सभी को आ सकते हैं। शरत ने कहा, राजकुमारी तो जो भी शरीरधारी हैं, आज नहीं तो कल कभी न कभी रोग तो आता ही है। कोई आदमी रोग से एकदम अपने को बच नहीं सकते हैं, कोई अपवाद नहीं है, ये सबको अक्स करने वाले चीज़ हैं।
तो इस पर फिर दोबारा विचार किया, तो पुनः सिद्धार्थ को ये अनुभूति हुआ कि उनके स्वास्थ्य भी अस्थायी हैं, अनित्यता है, नित्य नहीं है। फिर आगे चल करके उसी प्रक्रिया में, उस श्रृंखला में एक मृत्यु व्यक्ति का शव, मृत शरीर दाह संस्कार के लिए कुछ लोग लिए जा रहे थे और कुछ लोग बहुत रोते दिखलाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो फिर आश्चर्य हुआ, पूछा कि ये क्या हो रहा है। सारथ ने कहा कि राजकुमार जी, एक आदमी मर गया है और उनकी सगे संबंधी दुखी हैं, रो रहे हैं और इस मृत्यु शरीर को जलाने के लिए शमशान घाट ले जा रहे हैं। जो मरने वाले हैं वो तो मर गए हैं, लेकिन उनकी सभी संबंधी, मित्रगण और रिश्तेदार दुखी हैं क्योंकि वो कम उम्र में ही मर गया था। तो ये सब बहुत दुखी हैं, अकाल मौत से ये चल बसे हैं। तो फिर वही प्रश्न दोहराया, क्या कुछ कुछ लोग मरते हैं या सभी लोग मरते हैं। सारथ ने कहा कि कुछ देर से मरते हैं, कुछ जल्दी मर जाते हैं। ज़्यादातर पूरा जीवन जी करके वृद्धावस्था जब पहुंचते हैं तब मरते हैं, और कुछ लोग कभी भी मर जाते हैं, लेकिन मरते सब हैं। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त तो निश्चित रूप से ही होगा। कोई बचते नहीं है, आज तक कोई बच्चा नहीं है, कोई अपवाद नहीं। तो सिद्धार्थ ने देखा कि जरा, रोग और मरण, ये तीन अपरिहार्य अनिवार्य दुख संपूर्ण जगत पर व्याप्त हैं, कोई उससे बचा नहीं है। इसलिए यह विवाहपूर्ण जीवन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ कुछ नहीं है। यह सारे दुखों से जब तक निवृत्त नहीं होंगे तो कोई भी परीक्षावान मनुष्य, समझदार मनुष्य आराम से कैसे रह सकते हैं? यह दुख कैसे आते हैं और इस दुख से निवृत्त होने की मार्ग या उपाय है कि नहीं, इस पर सोचना और इसकी खोज करना, इस पर संशोधन करना हर मनुष्य की परम कर्तव्य बनते हैं।